Students, a very good morning. We are back with our lecture number 9. That is also the last one for this chapter. हमने अपना 8वां लेक्चर खत्म किया था at defects in solids. So now we are going to discuss the properties of solids. First of all, we will be discussing electrical properties of solids. Electrical properties of solids. On the basis of electrical properties, solids can be classified into 3 different categories, namely conductors, semiconductors, and third one is insulators. Conductors are those substances which allow electric current to flow through them very easily. Insulators do not allow the electric current to pass through them at all. Semiconductors are having conductors in between insulator and the conductors. On the basis of their conductivity values, conductors have a conductivity value 10 raised to power 4 to 10 raised to power 7 ohm inverse meter inverse. This is their conductivity value. Metals have a conductivity value of 10 raised to power 7 ohm inverse meter inverse. Semiconductors have a conductivity value between 10 to the power minus 6 to 10 raised to power 4 ohm inverse meter inverse. Insulators have a conductivity value between 10 raised to power minus 10 to 10 raised to power minus 20 ohm inverse meter inverse. So this is their conductivity values, on the basis of which we can classify these into 3 categories, that is conductors, semiconductors, insulators. Now these conductors can further be classified into 2 types, that is metallic conductor and second one are electrolytic conductors. Metallic conductors and electrolytic conductors. So what are metallic conductors? Metallic conductors are those which conduct electricity as a result of movement of electrons from one place to other place. Metallic conductors what do they do? Conduct electricity or conduct electric current due to movement of electrons. Due to movement of electrons. इन कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे एक जगह से दूसरी जगह तक. जब मेटालिक कंडक्टर्स कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, then there is no chemical change. There is no chemical change taking place during the conductance through the metallic conductors. Conduct electricity both in solid as well as in molten state. दोनों जगह ही कंडक्ट करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं and electrons have a negligible mass, so there is no net migration of mass from one part of the conductor to the other part. आपका मास का कोई नेट माइग्रेशन नहीं होगा.
These are the characteristics of metallic conductor. Now, the second type of conductors are, they are called electrolytic conductors. So, electrolytic conductor, these are those conductors which conduct electricity due to movement of ion. Conduct electricity due to movement of ions. These conductors do not conduct electricity in the solid state. Are bad conductors. Are bad conductor in solid state, but conducts in molten state or in solution. The third thing is a chemical change. A chemical change take place. जब भी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के अंदर से करंट पास करेगा, एक केमिकल चेंज जरूर होगा. एंड देयर इज ए नेट माइग्रेशन ऑफ मास. नेट माइग्रेशन ऑफ मास. आपका मास का मूवमेंट भी होगा जब कंडक्शन होगी ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स. अब कंडक्टर्स को, सेमीकंडक्टर्स को और इंसुलेटर्स को समझने के लिए वी मस्ट नो अबाउट बैंड थ्योरी गिवन बाय ब्लॉक, हेलिक्स ब्लॉक इन 1928, which is based on molecular orbital theory. हमने 11th में molecular orbital theory में पढ़ा था कि जब भी एटम्स ऑफ एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं तो एटम्स की आइडेंटिटी खत्म हो जाती है बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान, और एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना देते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन्स देन रिजाइड इन दोज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. टू अंडरस्टैंड द बैंड थ्योरी and how it explains the conductance in various types of substances, that is conductor, insulator and semiconductors, let us consider the example of lithium. Lithium is having an atomic number 3, so its electronic configuration will be 1s2, 2s1. Now if lithium forms a diatomic molecule, Li2 molecule अगर बनाए, so as per MOT, these atomic orbitals will combine to give molecular orbital. I will not be talking about this inertial electrons because they have nothing to do with conduction. I will be taking up only this. So during the bonding, these 2s orbitals of 2 lithium atoms will combine to form one molecular orbital, that is sigma 2s, and second one is anti-bonding molecular orbital, that is sigma star 2s. Now since this sigma 2s orbital is of lower energy, the 2 electrons of the 2 lithium atoms, they will be occupying the lower energy molecular orbital, that is sigma 2s2. Situation will be something like this. If this is your bonding molecular orbital of lithium Li2 and this is anti-bonding molecular orbital of Li2, your both the electrons will be residing in bonding molecular orbital. Now suppose the third atom now combines and the molecule now becomes Li3. So now our 3 2s orbitals of lithium will be combining. So they will give rise to 3 new molecular orbitals. One will be bonding molecular orbital, other will be a non-bonding molecular orbital. Non-bonding molecular orbital. These non-bonding molecular orbitals have energy equal to that of atomic orbitals. And the third one is
anti-bonding molecular orbitals. Naturally, the 3 electrons will now be occupying these two lower energy orbitals, that is bonding molecular orbital and anti-bonding molecular orbitals. Bonding molecular orbital and non-bonding molecular orbital. Anti-bonding molecular orbital will remain empty. Now, if Li4 molecule is formed, then in that case there will be 4 molecular orbitals, 2 will be bonding molecular orbitals, and 2 will be anti-bonding molecular orbitals. And the 4 electrons will be occupying the 2 bonding molecular orbitals. These anti-bonding molecular orbitals will remain empty. Now, if we keep on combining these lithium atoms and get a molecule LiN, then there will be 2n molecular orbital. Total molecular orbitals will be 2n, and half of these, that is n number of molecular orbitals, will be occupied by the electrons, and n number of molecular orbitals will be empty. Now these orbitals, because they have a very small energy difference, so they will form an energy band. So if we look at the lithium, the situation will be this: total number of 2n orbitals. Out of these n orbitals, they are occupying the bonding molecular orbital, and the other anti-bonding molecular orbitals are completely empty, so they are forming a energy band. ये जो आपका fully occupied orbitals है, bonding molecular orbitals, they form a energy band, जिसको हम कहते हैं valence band. This is called a valence band. और जो आपकी anti-bonding molecular orbitals की बैंड बनेगी, उसको बोलेंगे हम कंडक्शन बैंड. इट इज कॉल्ड कंडक्टेंस या कंडक्शन बैंड, CB. This is valence band and this is conduction band. Now, when you apply the electric current or you apply the potential, this electron can very easily go from valence band to conduction band because there is no energy difference. So this lithium will conduct the electricity quite easily. Now, if we go to the next atom, that is beryllium, then beryllium has an electronic configuration 1s2 2s2. When Be2 molecule will be formed, it will be sigma 2s2 sigma star 2s2. Now, in case of lithium, these orbitals were vacant and they were forming the anti-bonding orbital were forming the conduction band. Electrons were moving quite easily, but now this is fully filled. So beryllium should be bad conductor. It should not conduct the electricity, but in fact beryllium is a better conductor than lithium. So it was proposed that in addition to these orbitals, 3 2p orbitals of beryllium, they also form molecular orbital and they remain empty. तो टोटल हमारे पास, अगर हमारा मॉलिक्यूल बने Bn, तो हमारे पास 3n तो एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनेंगे ड्यू टू 2p ऑर्बिटल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ 2p ऑर्बिटल्स, एंड रेस्ट तो ये बनेंगे, इनके अंदर कंप्लीटली फिल्ड आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे. और बेरिलियम के केस में क्या होता है कि आपके जो ये फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल हैं, ये बनाते हैं कंडक्शन बैंड. फुली फिल्ड ऑर्बिटल ये बनाते हैं बैलेंस बैंड. और जो एम्प्टी ऑर्बिटल की बैंड बची, ये इनफैक्ट ओवरलैप करती है ड्यू टू स्मॉल एनर्जी डिफरेंस. ये आपकी कंडक्शन बैंड है, जिसको मैंने थोड़ा सा डार्क करके दिखाया, और ये ओवरलैप करेंगी आपकी बैलेंस बैंड में. तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है. इलेक्ट्रॉन कैन, बिकॉज देयर इज नो एनर्जी गैप, सो इलेक्ट्रॉन कैन वेरी इजीली माइग्रेट फ्रॉम बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड. सो करंट विल बी वेरी इजीली कंडक्टेड. अब ऐसा
हर केस में नहीं होता कि ओवरलैप हो जाए कंडक्शन बैंड या इनके बीच में कोई एनर्जी गैप ना हो, गैप ज्यादा होता है। ये वैलेंस बैंड एंड कंडक्टेंस बैंड दे आर सेपरेटेड बाय ए वेरी लार्ज फॉरबिडन गैप, सो इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट जंप फ्रॉम वैलेंस बॉन्ड टू कंडक्टेंस बैंड, इसलिए उन इंसुलेटर्स के केस में कंडक्टेंस नहीं दिखाई देता। तो बैंड अगर हम देखें हम तीनों के, मेटल्स के कंडक्टर, मेटेलिक कंडक्टर्स के, ये आपकी मेटेलिक कंडक्टर्स या कंडक्टर्स कह लीजिए, और कंडक्टर्स, उनके अंदर दो स्थिति है। पहली स्थिति ये हमने देखी थी लिथियम में, कि आपका आधे ऑर्बिटल्स एम्प्टी थे, आधे कंप्लीटली फिल्ड थे, ठीक है, और एनर्जी गैप था ही नहीं, एक बैंड, सिंगल बैंड आपको दिखाई दे रही है। ये बेरिलियम का केस है, जो रेड रीजन दिख रहा है आपको, ये आपकी वैलेंस बैंड है, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, जो आपके 2s ऑर्बिटल्स के मिलने से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने थे, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। और ये जो ब्लैक में कंडक्टेंस बैंड दिखा रखी है, ये आपकी जो है 2p ऑर्बिटल्स के मिलने से बनी थी, लेकिन एनर्जी डिफरेंस इनमें क्या है कि ये जो कंडक्टेंस बैंड है बेरिलियम में, ये ओवरलैप करेगी विद द वैलेंस बैंड। और अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में एक एनर्जी गैप होगा, जिसको हम बोलेंगे फॉरबिडन गैप, बट दिस गैप विल बी लेस। Whereas in case of insulators, this I have done for insulators. In case of insulators, the gap, forbidden gap is large. Of course, these gaps are not to the scale, and I am not talking about the energy of these gaps, because this topic will be very vastly discussed in physics. So we have to just check it out. Electrons can move very easily from this band to this band. There is no energy gap. There is overlapping, so very easily this can move. Some of the electrons can move into the conduction band from the valence band, so they are a bit conductor. हमारे पास दो प्योर जो सेमी कंडक्टर्स हैं, वो आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये दो कंपाउंड है हमारे कार्बन फैमिली में, ग्रुप नंबर 14 के अंदर। ये प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये दोनों ही सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में फॉल करते हैं, और इनको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। इंट्रिंसिक क्योंकि ये प्योर स्टेट के अंदर सेमीकंडक्टर शो करते हैं, लेकिन प्योर स्टेट में जो इनकी कंडक्टर्स है सिलिकॉन और जर्मेनियम की, वो इतनी कम है कि दैट इज ऑफ नो प्रैक्टिकल यूज, बट वी कैन इंट्रोड्यूस some impurity defect in these intrinsic semiconductors and make extrinsic semiconductors by doping these two semiconductors of group 14 with either the impurities of group 13 element or with the doping with elements of group 15. So now let us discuss about those semiconductors which are extrinsic semiconductors obtained by doping of silicon and germanium with either the group number 13 element phosphorus arsenic or by group 15 element, sorry, ग्रुप नंबर 13 में हम इनको बोरोन एल्युमिनियम की इंप्योरिटी से डॉप कर सकते हैं। बोरोन एल्युमिनियम ग्रुप 13 में एलिमेंट्स को डालेंगे। आई रॉन्गली mentioned arsenic, but that is not the case, that belongs to group 15। या फिर हम इनको डॉप करेंगे ग्रुप 15 एलिमेंट्स को के साथ, फॉस्फोरस और आर्सेनिक के साथ। तो ये जो आपके सिलिकॉन और जर्मेनियम है, इनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स क्रिएट हो जाएंगे और दे विल बिकम ए बिट मोर कंडक्टिंग देन प्योर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, और इनको हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहेंगे। एक्सट्रिंसिक क्योंकि अब हम इनको इंप्योरिटीज ऐड करके सेमीकंडक्टर बना रहे हैं। होता क्या है उसके अंदर, जैसे मान लीजिए सिलिकॉन एटम है, मैं सिलिकॉन का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, कोवलेंटली बॉन्डेड होंगे ये। हर सिलिकॉन एटम 4 बॉन्ड बनाएगा अपने नियर बाई एटम्स के साथ,
बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। आई एम शोइंग दोज इलेक्ट्रॉन्स विद द रेड कलर। सो दिस इज द सिचुएशन। कोवलेंटली बॉन्डेड सिलिकॉन है ये हमारा। हर सिलिकॉन एटम 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है अपने दूसरे 4 सिलिकॉन एटम्स के साथ। तो हर सिलिकॉन के वैलेंस शेल में देयर आर नाउ 8 इलेक्ट्रॉन्स। ये आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, प्योर स्टेट वाला, जिसकी कंडक्टेंस मैंने कहा था इट इज वेरी स्मॉल एंड इट इज ऑफ नो प्रैक्टिकल यूज। ये मैंने जो नीचे की तरफ दिखाए हैं, जहां पे सिलिकॉन एटम नहीं दिखाया, इधर आपके दूसरे एटम्स हैं सिलिकॉन के, इनको मैं 2 लाइनों से शो कर रहा हूं बजाय एटम्स के। तो इधर दूसरी तरफ भी सिलिकॉन के एटम्स हैं। सो सिचुएशन इज समथिंग लाइक दिस। यहां पे भी आप दिखा सकते हैं, दिखाना चाहें तो ऐसे। So this is the bonding in case of silicon. This is the situation of silicon crystal. कोवलेंटली बॉन्डेड है ये। आपके हर सिलिकॉन एटम एडजॉइनिंग 4 सिलिकॉन एटम्स के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। ये हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, लेकिन इनकी कंडक्टेंस नॉर्मल टेम्परेचर्स पे बहुत कम है एंड दे आर ऑफ नो प्रैक्टिकल यूज। अब अगर हम इस क्रिस्टल को डॉप कर दें से विद एलिमेंट ऑफ ग्रुप 30, मान लीजिए मैंने इसके अंदर यहां पे, तो यहां पे हमने इस सिलिकॉन के क्रिस्टल को डॉप कर दिया से बोरोन से। यहां पे हमारा बोरोन एटम है, तो बोरोन के वैलेंस शेल में आपको पता है 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। वो 3 इलेक्ट्रॉन 3 बॉन्ड बना लेंगे सिलिकॉन एटम के साथ। चौथा इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे एक इलेक्ट्रॉनिक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, जिसको हम बोलेंगे होल। और ये जो सेमीकंडक्टर बनेगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, बाय डोपिंग सिलिकॉन विद बोरोन, इसको हम बोलेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्योंकि इसके अंदर जो कंडक्शन होगी वो कैसे होगी कि इलेक्ट्रॉन होप करेगा यहां से इस होल में, और यहां पे होल क्रिएट हो जाएगा। तो आपका इलेक्ट्रॉन हॉप करके नेक्स्ट जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन जिधर मूव करेगा, अगर आपने 2 कंडक्टर लगा दिए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिए, तो आपका इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की तरफ जा रहा है, तो आपका यहाँ पे होल ऐसे लगेगा एज इफ होल इज मूविंग टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। तो ये जो कंडक्शन होगी इसको हम पी टाइप कंडक्शन बोलते हैं, और इस सेमीकंडक्टर को बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब दूसरी बात पे आ रही है, आप अगर हम इसको डॉप करें विद ए ग्रुप 15 एलिमेंट से, अब हमने यहां पे डाल दिया आर्सेनिक, तो क्या होगा उस केस में, आपके आर्सेनिक के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो उसने 4 तो बॉन्ड बना लिए सिलिकॉन के साथ, और 5वां इलेक्ट्रॉन इसका क्या हो गया, फ्री, जो बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो दिस free electron will increase the conductance of this semiconductor, और क्योंकि अब ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से होगी, इसको n टाइप कंडक्शन बोलते हैं, और ये जो सेमीकंडक्टर है इसको n टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। और ये जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं, इनकी कंडक्शन जो आपके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं, दैट इज प्योर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, उनसे ज्यादा होती है। इनको हम क्या करते हैं, ये जो सेमीकंडक्टर हमारे बने हुए हैं, इन सेमीकंडक्टर्स के यूजेस की अगर हम बात करें तो ये बड़े यूजफुल हैं।
एक तो जो डायोड बनते हैं, वी कैन मेक ए डायोड by joining the two semiconductors and these diodes are used as rectifier. दूसरा क्या होता है कि अगर हम दो सेमीकंडक्टर्स के बीच में एक सेमीकंडक्टर को सैंडविच कर दें, मान लीजिए आपने एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लिया, इसके दूसरा पी टाइप और एन, दो एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में पी टाइप सेमीकंडक्टर का सैंडविच बना दिया, तो ये जो चीज बनेगी ये बनेगा ट्रांजिस्टर। एंड ट्रांजिस्टर्स हैव मैनी यूजेस इन इलेक्ट्रॉनिक्स। फिजिक्स में आप इसको सारा डिटेल में पढ़ेंगे, तो हम बहुत ज्यादा डिटेल में इसको डिस्कस भी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे एनपीएन ट्रांजिस्टर था, वैसे पीएनपी बनता है ट्रांजिस्टर। अब जो बेसिक चीज इसके पीछे थी वो ये थी कि जितने हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम की हम बात कर रहे थे, उनके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे। तो ऐसे बहुत से सॉलिड मटेरियल तैयार किए गए हैं जिनका एवरेज बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो। तो उनके अंदर हम क्या करते हैं, ग्रुप 13 और ग्रुप 15 के एलिमेंट्स। ग्रुप 13 में आपको पता है देयर आर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ग्रुप 15 में देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन्स। सो देयर विल बी ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है दैट विल बी ऑफ योर 4, एवरेज वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी 4। इसी तरीके से अगर हम बात करें ग्रुप 12 और ग्रुप 16, तो इन ग्रुप के एलिमेंट्स को आपस में मिक्स करके हमने बहुत से सॉलिड मटेरियल तैयार किए हैं जो सेमीकंडक्टर्स की तरह काम करते हैं। जैसे ग्रुप 13, 15 का एलिमेंट अगर हम बात करें, तो जैसे इसके अंदर ग्रुप 13, 15 का एलिमेंट है एल्युमिनियम, फास्फोरस, गैलियम, आर्सेनिक। ये जो गैलियम आर्सेनिक सेमीकंडक्टर्स है, ये जो सेमीकंडक्टर्स हमने बनाए इस टाइप से दो ग्रुप के एलिमेंट्स को मिला के, इनका बड़ा फास्ट रिस्पॉन्स है, सो दे आर वेरी यूजफुल सेमीकंडक्टर्स। इसी तरीके से अगर आप 12-16 की बात करें, तो 12-16 के अंदर आपके जो हैं वो जिंक सल्फाइड है, आपका कैडमियम सल्फाइड है, आपका कैडमियम सिलीनियम है, मर्क्यूरी टेलुरियम है। ये ग्रुप 16 के 12-16 के कंपाउंड्स हैं जो सेमीकंडक्टर्स की तरह काम करते हैं और दे आर क्वाइट यूजफुल दीज डेज। हमारे जो ये कंपाउंड है इन आजकल जो है बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं क्योंकि इनका रिस्पॉन्स बड़ा फास्ट है और बहुत सी जगहों पे हमने इनको यूज किया हुआ है। एक चीज और यहां पे मेंशन करना चाहूंगा मैं कि जो ट्रांजिशन मेटल्स के कंपाउंड्स हैं दे हैव वेरी मार्क्ड डिफरेंस इन देयर प्रॉपर्टीज। जैसे रिहीनियम ट्राइऑक्साइड ReO3, ये बिल्कुल दिखने में और कंडक्टेंस में बिल्कुल कॉपर की तरह है और बहुत जो ये कंपाउंड है वेनेडियम के VO2, ये कंडक्शन शो करते हैं मेटल्स की तरह, इंसुलेटर्स की तरह भी काम करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर। सो यू मस्ट आल्सो हैव अ बिट आइडिया अबाउट दिस। सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आवर solids. Now the second property which we have to discuss is magnetic properties. The second type of properties which we are discussing, that is magnetic properties. Magnetic properties. To discuss the magnetic properties, पहले हम डिस्कस करते हैं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ओरिजिनेट कैसे होती है। अगर हम किसी भी एलिमेंट का ये न्यूक्लियस हो तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स के पास दो तरह की मोशन है। एक तो हमारा इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिटल मोशन शो कर रहा है
क्योंकि ये मूविंग चार्ज है तो ये एक इलेक्ट्रिक लूप की तरह काम करेगा, जिसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, जिसको हम बोल सकते हैं कि ऑर्बिटल मोशन की वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट एक पैदा होगा। इसी तरीके से जो ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन खुद ये अपने एक्सिस के ऊपर स्पिन कर रहा है, सो दैट विल आल्सो गिव यू ए मैग्नेटिक मूवमेंट। तो दो तरह के मैग्नेटिक मूवमेंट हमेशा जुड़े होते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन के साथ एटम में, ड्यू टू इट्स ऑर्बिटल मोशन या ड्यू टू स्पिन मोशन, एंड दीज in fact are responsible for the magnetic properties of the substances. अगर हम सॉलिड्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेस पे हम सॉलिड्स को 5 कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं। पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक एंड एंटी फेरोमैग्नेटिक। तो ये 5 तरह के हमारे पास सॉलिड्स होते हैं। इसमें ये ध्यान रखना है कि ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट होगा इनकी वैल्यू जो है वो बहुत कम होती है, इसलिए इनका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो बाहर मैग्नेट्रॉन में दिया जाता है। और अगर हम स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करें तो दैट इज ऑलवेज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ n into n+2। सो नाउ लेट अस डिस्कस। तो बोहर मैग्नेट्रॉन के अंदर हम इसकी जो है वो वैल्यू को मेंशन करेंगे, और आपका जो 1 बोहर मैग्नेट्रॉन है that is equal to 9.27 into 10 की पावर माइनस 24 मीटर एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो ये आपकी यूनिट है इसकी। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? दे आर वीकली अट्रैक्टेड in an applied magnetic field। अगर आप कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे किसी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस पे तो वो हल्का सा उस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होगा। क्यों होता है ये? कि जब हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये जो आपके सब्सटेंस है ये सबके सब मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं, गेट मैग्नेटाइज्ड इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड, इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड की डायरेक्शन में ही मैग्नेटाइज हो जाएंगे। दिस पैरामैग्नेटिज्म अराइजेस ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है ये। अगर हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की बात करें तो हमारा ऑक्सीजन है, Cu2+ है, ये आपके पैरामैग्नेटिक हैं। जिनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो सबके सब हमारे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की कैटेगरी में आएंगे। दूसरे टाइप के जो हमारे सब्सटेंसेस हैं वो है डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जिनको अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखें, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो दे आर वीकली रिपेल्ड इन द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। डायामैग्नेटिक, दे आर वीकली रिपेल्ड इन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा, जब इनको फील्ड में रखते हैं गेट मैग्नेटाइज्ड, ये मैग्नेटाइज हो जाएंगे इन अपोजिट डायरेक्शन।
फील्ड के अपोजिट मैग्नेटाइज होंगे। ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके अंदर, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। और ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या होता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स का जो स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो एक दूसरे को क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। इसका एग्जांपल है H2O, NaCl। ये हमारे डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं। तीसरे साइड के हमारे सब्सटेंसेस हैं, दे आर फेरोमैग्नेटिक। जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं, फेरोमैग्नेटिक, they are very strongly attractive, very strongly attractive in applied magnetic field। अब इनमें होता क्या है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में, अगर हम इस मैग्नेटिक फील्ड को हटा दें जो हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया था, इफ वी रिमूव दिस मैग्नेटिक फील्ड इवन देन दीज सब्सटेंसेस आर मैग्नेटाइज्ड, मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। परमानेंट मैग्नेट इसी सब्सटेंस की बनते हैं। हमारे पास आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये तो वो एलिमेंट्स हैं जो फेरोमैग्नेटिक है नेचर के अंदर। इसके अलावा हमारे पास जो है कुछ कंपाउंड्स हैं विच आर फेरोमैग्नेटिक इन नेचर, जैसे कि उनमें से कुछ एग्जांपल अगर हम बात करें तो एक कंपाउंड है क्रोमियम का CrO2, ये फेरोमैग्नेटिक है नेचर के अंदर। इनमें क्या होता है ऐसा, एक्चुअली क्या होता है इन सब्सटेंसेस के अंदर डोमेन्स एग्जिस्ट करती हैं और वो डोमेन्स रैंडमाइज होती हैं, दे आर रैंडमली डायरेक्टेड, दे हैव नॉट ए फिक्स डायरेक्शन, दे आर रैंडमली ओरिएंटेड। जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये सारी की सारी डोमेन्स दे अलाइन पैरेलल टू ईच अदर, दे ऑल अलाइन पैरेलल टू ईच अदर, गिविंग राइज टू ए वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। और ऐसे सब्सटेंसेस फेरोमैग्नेटिक होते हैं। अब जब हम मैग्नेटिक फील्ड हटाएं, सो दीज डोमेन्स आर अनएबल टू रैंडमाइज देमसेल्फ, ये अपने आप को दोबारा से रैंडमाइज नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ एनर्जी कंसिडरेशंस। ये रैंडमाइज नहीं होती तो परमानेंटली मैग्नेट की तरह बिहेव करनी शुरू कर देती हैं, इसलिए इनको फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस बोलते हैं। लेकिन एक ध्यान रखना है कि अगर हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को हीट करें तो ये आपके एक सर्टेन टेम्परेचर जिसको हम बोलेंगे क्यूरी टेम्परेचर, उस पे जाकर हम क्यूरी टेम्परेचर को डिफाइन तो किया हुआ बुक्स के अंदर कि इट इज दैट टेम्परेचर एट विच ऑल फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस स्टार्ट बिहेविंग लाइक ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। हर सब्सटेंस चाहे वो फेरोमैग्नेटिक हो, एंटी फेरोमैग्नेटिक हो, पैरामैग्नेटिज्म को अटेन करता है डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर। तो ये उस केस में क्या हो जाती है, रेंडमाइज हो जाती है, तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर को क्या करेगी, ये अटेन कर लेगी। इसके बाद है एंटी फेरोमैग्नेटिक, पहले हम एंटी फेरोमैग्नेटिक कर देते हैं फिर फेरीमैग्नेटिक करेंगे। एंटी फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है कि जो एंटी फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड्स हैं इनमें भी अलाइनमेंट होता है डोमेन्स का, लेकिन वो जो अलाइनमेंट होता है वो कंपनसेटरी होता है। कंपनसेटरी मींस कि इक्वल नंबर ऑफ डोमेन्स आर अलाइन्ड in one direction and same number are aligned in the opposite direction। तो इनका नेट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, जीरो होगा, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का एग्जांपल है मैग्नीज ऑक्साइड। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो हैं वो भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में चेंज हो जाते हैं,
अबव ए सर्टेन टेम्परेचर, जिसको हम कहते हैं नील्स टेम्परेचर। तो ये आपने ध्यान रखना है कि नील टेम्परेचर पे किसी भी सब्सटेंस का कन्वर्जन हो जाता है एंटी फेरोमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक। जैसे V2O3 150 केल्विन टेम्परेचर पे इट चेंजेस टू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब जो लास्ट टाइप के हमारे सब्सटेंसेस हैं वो हैं फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में भी क्या होता है, डोमेन्स की अलाइनमेंट होती है बट नॉट इन एग्जैक्टली कंपनसेटरी वे। एग्जैक्टली कंपनसेटरी नहीं होती, अनइक्वल नंबर ऑफ डोमेन्स दे अलाइन इन वन डायरेक्शन, जिसकी वजह से इनके अंदर हल्का सा मैग्नेटिक फील्ड होता है और इसी वजह से ये हल्के से अट्रैक्ट होते हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के मुकाबले में तो बहुत कम, बट दे आर स्लाइटली अट्रैक्टेड इन द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। जैसे आपका Fe3O4 इज वन ऑफ द फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। इसके अलावा हमारे फेराइड्स हैं, इसके अलावा फेराइड्स दे आर आल्सो फेरीमैग्नेटिक इन नेचर। फेराइड में MgFe2O4 है। तो ये सब्सटेंसेस हमारे फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं। इनके भी अगर हम हीट करें, इन फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को भी अगर हम हीट करें तो एक सर्टेन टेम्परेचर पे जाके ये भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में चेंज होते हैं। और जैसे कि हमारा ये Fe3O4 है, ये 850 केल्विन पे हीट करने पे पैरामैग्नेटिक हो जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। विद दिस वी हैव finished this chapter as far as +2 syllabus is concerned. Rest about competition we will be talking a bit later. Thank you very much.